ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੂਤਰਾਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੁਤਾਰਾਵਾਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਦੁਤਾਰਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਧਨਪਾਲ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਚਾਹਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 7 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਨਪਾਲ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚਾਹਲ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ गई सी। डीजीपी सर के जो हमारे निर्देश हैं कि संगठित अपराध पर रोक लगे और इसी क्रम में आईजी सर बीकानेर के द्वारा भी हमें सख्त निर्देश हैं। इसमें वो एक बार स्पेशली संगठित अपराध की कार्य योजना बनाने हेतु कि इसमें कैसे कार्रवाई की जाए, वो कुछ दिनों पहले श्रीगंगानगर भी पधारे थे। उसी क्रम में हमने एक पूरी योजना बनाते हुए पूरा प्लानिंग करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, क्योंकि जो ये अपराध करके दूसरे देशों में बैठे हैं, संगठित अपराध में जुड़े सरगना दूसरे देश में बैठ के और यहाँ पर अपराध कारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवारजन हैं उनके पास वो अपना जो इससे अपराध से अर्जित जो पैसा है वो उनके पास भेजते हैं, जिससे वो चल और अचल संपत्ति को खरीदते हैं। तो उसी को हम फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस करने के लिए आज हमने बड़े स्तर पर 5 जगह दबिश दी। लारैंस बिश्नोई के गांव दूतावाली, जिसमें पंजाब पुलिस का हमें सहयोग रहा, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक सीओ, 5 थानाधिकारी व स्थानीय जो वहाँ के पंजाब के थाने के स्टाफ के साथ 100 का हमने जाब्ता लिया। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर, ड्रोन की भी हमने साथ में लेकर पूरी थॉरो सर्च की घर पे, और जो भी उन्होंने उनके पास जितनी भी चल अचल संपत्ति थी उसका पूरा हमने विवरण लिया, उसका हमने पूरा एक फर्द बनाई। ऐसे ही रोहित गोदारा के घर में भी एडिशनल एसपी, सीओ, 4 थानाधिकारी और बीकानेर की जो स्थानीय टीम है उसके साथ लगभग 60 का जाब्ता 70 का जाब्ता लेकर और हमने वहाँ पर भी दबिश दी। उसके घर का पूरा हमने ब्यौरा लिया है कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगा है, कब है, कौन से जो उपकरण है जो कृषक वो कब खरीदे गए हैं, कितनी कृषि भूमि है, तो उस और कितने बैंक अकाउंट्स हैं उनमें किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, और जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, ज़मीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है और उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15Z और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहाँ पर भी हमने इन 5 जगह पे लारैंस बिश्नोई, रोहित गोदारा
अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज्यादा से ज्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहां पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम्स 5 बजे सब जगह पर पहुंच गए और हमने उसमें कार्रवाई की है। हमें पूरा इसमें विश्वास है कि हमें इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल ऐसी मिलेगी जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो पैसा है, एक तो वो इंटरनेशनल ये क्राइम हो गया है क्योंकि दूसरे विदेश में बैठ के और वो पैसे हवाला करके यहाँ से लेकर भी जाते हैं देश से, और वो किस रूप में वापस परिवारजनों के पास भेजते हैं उसके बारे में हम पूरा इसमें अनुसंधान करेंगे। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि ये सही में ही बाहर से हवाला का पैसा हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है फिर वहां से वापस आ रहा है तो इसमें और उससे कोई चीज ये अर्जित कर रहे हैं तो उसका पूरा एक फर्द बना के जो ईडी है उसको भी दिया जाएगा ताकि वो संबंधित प्रॉपर्टी पर अपनी कार्रवाई कर सके। और जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेल हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। और हम मानते हैं इससे काफी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी पर फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो अमल में लाएंगे। अभी तो हमने सारी जो चीजें हैं उनका रिकॉर्ड लिया है, रिकॉर्ड लेके और फिर उसके बाद कि वो किस तरह से आया वो हमने उनसे पूरी पूछताछ ली है और नोट बनाया है कि आपके पास यहाँ से पैसा कैसा है, उसका पूरा एक हम पूरा चार्ट बनाएंगे, चल और अचल संपत्ति का पूरा ऑडिट कराएंगे कि किस हिसाब से इनके जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनका इनकम सोर्स है, उससे अधिक इनके पास अगर ये काम कर रहे हैं तो वो कैसे, जैसे किसी अगर घर भी बनाया है तो ठेकेदार को पैसे दिए तो किस रूप में दिए हैं, तो सारा का सारा एक एक छोटी से छोटी बारीक इसमें हम अनुसंधान करेंगे और इसमें डिटेल, इसमें पूरी जो डिटेल्स इकट्ठा करके और फिर ईडी के माध्यम से हमारे जो नए आपराधिक कानून हैं उनके माध्यम से 107 बीएनएसएस के माध्यम से, और अगर कोई एनडीपीएस में जैसे विशाल पचार है तो हम एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी के विरुद्ध, उनके परिवारजनों के विरुद्ध हम क्या विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं वो इसमें हम देखेंगे। अभी तक मैडम प्रथम दृष्टया कितनी संपत्ति का पता लगाया? अभी उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। हमें सिर्फ अभी तो हमने वो सारी ली, अभी हमें रिकॉर्ड लेना पड़ेगा कि वो उन्होंने कब अर्जित की है संपत्ति। उसके बाद हमने अभी लिस्टिंग कर ली है, जैसे जैसे आपको हम पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगी वैसे वैसे प्रेस नोट के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैम इस प्रॉपर्टी का जो आप बता रहे हो चल या अचल रिकॉर्ड नहीं था? देखिए, एक इतनी बड़ी टीम के साथ और सारा एक एक डिटेल हमने पूरे उनके घर को भी सर्च किया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें छुप भी जाती हैं, कोई जैसे पासबुक भी होती है, और उनका पूरा एक कि किस तरह से उन्होंने वो प्रॉपर्टी धारण की है, उसका पेमेंट मोड क्या रहा है, वो इतनी बारीकी तक हम मेरे ख्याल से अब हम इस चीज में हम को इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। वो जो अब यूं ना समझे अपराधी कि हम भारत के सीमा में नहीं है, उसकी जमीन पर नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ नया मिला मैम, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट कुछ एक हमें देखिएगा, कुछ एक हमें जो जैसे जितना हम सोच रहे थे, कुछ एक जैसे बैंक खाते जितना हमें नॉलेज नहीं थी उससे अतिरिक्त हमें बैंक की पासबुक्स मिली है। अच्छा। कुछ एक हमें एक आधे जिस हिसाब से कि जो छुपा रखे होंगे फोन्स वगैरह वो भी कुछ एक ऐसे मिले हैं, क्योंकि एकदम उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं था, ये एकदम वो स्तब्ध रह गए थे कि इस तरह से इतनी बड़ी उस पर टीम अभी आई है, इतने बड़े स्तर पर टीम आई है। और हमने पूरे गाँव में भी इसमें पूछताछ हम कर रहे हैं कि कोई और जिसका आना जाना हो तो उससे भी हम फिर आगे पूछेंगे, क्योंकि आज के समय पर जिस हिसाब से चल रहा है तो कौन पैसे देने आता है, इनको पहुंचा रहा है, कौन इनसे ये जो अपराधी है किस हिसाब से उनसे संपर्क रखते हैं, अपने परिवार से किसके माध्यम से रखते हैं, तो वो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। कोई वेपन, नार्को सब्सटेंस वगैरह अभी ऐसा कुछ मैडम जिन लोगों ने इनको पैसे दिए उन पे भी शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल, इसमें पूरी जो ट्रेन है हमारी उस पर हम इस पे जाएंगे परिवार और पूरी डिटेल में जाएंगे और गंभीरता से इसमें हम करेंगे। मैडम, परिवार के लोगों का कैसा रहा, समर्थन रहा, विरोध किया है परिवार ने? देखिए, अभी जिस हिसाब से हम अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर गए थे, है ना, तो उसमें तो मुझे लगता है कि उनके पास मतलब और स्थानीय पुलिस की हमने साथ में लिया, वो हमारे पास जिस हिसाब से इनपुट्स थे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो मदद कर रहे हैं, तो संगठित अपराध जैसे गंभीर
जो आज के समय पर न्यू क्रिमिनल लॉ में जो धारा दी है नए आपराधिक कानून में, तो उसमें उनके पास कोई और पुलिस का सहयोग करने के अलावा कोई और चारा नहीं। एंड कोई एबनॉर्मल चीज आपको लगे कि ये सामान्य जो कृषि यंत्र और ये तो सारे होते ही हैं, इन्हीं दिनों कुछ नई प्रॉपर्टीज सामने आई हो कोई? वो वही अभी पूरा डिटेल हमें देखिएगा, अभी तो उनके पास हमें कागज मिले, उसका पूरा एक बार हमें पूरा वो डिटेल लेनी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। कोई बिग अमाउंट किसी के यहाँ मिला हो, नहीं इन्वेंट्री में आपने को डाला हो, ऑर्नामेंट को ऐसे डाला हो तो नहीं, वो जो चीजें वो हमने लिखी ऐसा कुछ नहीं है। उनको लिस्टिंग करके आप उनको हाँ, हमने जितना भी जैसे मेन जो अपनी उन्होंने कोई जमीन उनका, जैसे मैं कह रही हूँ कि घर का भी कि किस तरह का उन्होंने जो काम करवा रखा है, किस तरह की टाइल है, फर्श पे पत्थर है, कितना इसमें काम होगा, कितने रुपए का काम होगा, ये कहाँ से आया, उनकी आमदनी क्या है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव में जुटारा वाली में उसके दादा का बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है, उसको भी आपने विजिट किया, उसको खूब पैसा लगा? उसको बिल्कुल हमने उसको एक अपने इसमें लिया है, तो उसकी भी एक बारी पूरी जांच पंजाब के माध्यम से हम बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। नहीं बिल्कुल। हाँ जी, नहीं अभी कुछ नहीं किया, अभी जब्ती नहीं की, अभी सिर्फ फर्द बनाई है कि फर्द जो वहाँ पर विश्लेषण बनाई है कि हमें वहाँ पे क्या किया। रिपोर्ट वहाँ से लिया या देने का नहीं गया? जो रिकॉर्ड है उसका हमने अपने पास फोटोस्टेट कॉपी जो वहाँ पर कागज मिले हैं उसकी हमने एक प्रतिलिपि अपने पास रख ली है, और उसके हम उसी से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करके फिर फाइनली कुछ करें। फोटोकॉपियर भी साथ ही लेके गए होंगे? हाँ जी, फोटोकॉपी करने के लिए फोटोकॉपियर भी साथ ही लेके गए होंगे? तो आप सब कुछ बता रहे हैं, ड्रोन है, जो आप अपने घरों को खंगाला, तो इकोनॉमिकली साउंड कौन सा लगा आपको? सारा में चला तो ये मकान है भैया, क्या मकान है? देखिएगा ऐसे तो नहीं, अब इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। देखिएगा इसमें तो नहीं कंपैरिजन नहीं होता है। इसमें तो अगर कुछ भी अतिरिक्त किया है, मैं मानती हूँ कि जो भी चाहे आपराधिक पैसे से कोई छोटी से छोटी चीज भी अगर करी है ना, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसमें मैं मानती हूँ कि जो परिवारजन है, अगर आपराधिक उससे अर्जित जो पैसे हैं उससे अगर अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, परिवार वालों का अगर वो कोई भी अर्जित कर रहे हैं कोई चीज, तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब वो भी प्रतिभागी है ऐसे। अब्रॉड में कहीं है 5 के 5 जिनके यहाँ रेड हो गया, ये सब फॉरेन में कहीं? कुछ का तो हमें श्योर है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया, साबरमती जेल में, मतलब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल में। आपका उनका नाम देखिएगा वो भाई उनके पूरे परिवार में हुई है, पूरे घरों में भी। आरजू भी है, अनमोल भी है, सचिन ठाकुर भी है, कई हैं वहाँ पर, सभी इसी जेल में आते हैं। जी, हमने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई के घर में हमने रेड की है। आरजू बिश्नोई का घर लॉक्ड था जी, उसके परिवार में कोई नहीं। सचिन थापन और है। हमने अभी इन्हीं पर फोकस किया है, सिर्फ अपने को हमने सिर्फ और सिर्फ इन 5 लोगों पे ही फोकस किया। अच्छा मैम, केवल गंगानगर में इन 5 गैंगस्टर के ठिकानों पे छापामारी हुई है, राजस्थान में कहीं और भी हुई है? नहीं, हमने अपने ही इधर एरिया में जो हमारे यहाँ पर जो हमें लगता है कि जो एक्टिव है, अभी हमने उन्हीं को ही टारगेट लिया है। हम चाहते हैं कि जो हम काम करें उसको अंतिम सिरे तक लेकर जाए, इसलिए हमने फोकस्ड अप्रोच लेकर ये कार्रवाई की। ये जो आप जो एक्सरसाइज होगी आपकी, ये कहीं आगे जाके कोई आपको हेल्प करेगी इनको पता करने जो फॉर्म में बैठे हैं वहाँ इनको बुलाते हैं? वो अलग से हमारा वो प्रक्रिया अलग से चल रही है हमारी। कहीं ना कहीं ये देखिए बिल्कुल कोई भी हम काम करते हैं और विधि सम्मत तरीके से करते हैं, और फिर उसके बाद में वो रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं काम आवश्यक आता है। जो शहर की सूचना गैंगस्टर को देते हैं कि ये पावरफुल है, ये कैसे वाला है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मर भी आपने गाँव? आज जैसे अभी बीकानेर में भी फायरिंग हुई है, तो उसी के उसमें सभी अभी हमें कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि इनके जो एक्टिव अगर साथी यहाँ पर हैं, जो या फिर जो पहले इनके केस वार रहे हैं, उन पर हम बड़े स्तर पर अब दबिश भी दे रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। आइडेंटिफाई हुए हैं कोई इन्फॉर्मर? अभी उन पर काम चल रहा है, वो तो आसूचना का काम है, वो जो रिसेंटली गंगानगर में कुछ एफआईआर लॉज हुई हैं जिनको थ्रेटनिंग आई है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी और ठीक एफआईआर हो जाती है, आगे उसमें नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। जिनमें हम जैसे गिरफ्तारियां कर रहे की हैं कुछ केसेस में, काफ़ी में हुई भी है, उनमें एक नया जैसे नए आपराधिक कानून में 356 धारा है जिसमें कि हम ट्रायल इन एब्सेंशिया करते हैं,
तो उसमें फिर हम आगे रेड कॉर्नर नोटिस भी हमने मतलब जारी करवाते हैं, सभी चीज़ें हम करा रहे हैं। जो कुछ एक अगर हमें पता भी आगे चलेंगी, कुछ एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी भी होती है, तो हम लगातार हमारे पुलिस मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय केंद्रीय एजेंसीज के साथ लगातार संपर्क में है, समन्वय कर रहे हैं। और ये अगर फॉरेन में भी अगर बैठे हैं, कहीं दूसरे देश में भी बैठे हैं, तो ये बड़े अपराधी, इनके विरुद्ध फिर भी नए आपराधिक कानून के तहत हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। इनके जो न्यायालय में इनके विरुद्ध हमारी जो ट्रायल है वो शुरू हो सकती है, जिसको बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंटिया। फॉरेन में फेक आइडेंटिटी और फेक पासपोर्ट से बैठे लोग इनके नाम से गाड़ी होती है, तो कैसे इनका फेस करता